Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of revision of short and long question. That is revision of short and long question type from TSU chapter. As you all know, just after the fundamental units of life, the second chapter of biology is TSU, and there is need to explain, there is need to understand the concept of the long and short type question from TSU chapter. In previous video lecture, you have learned the long and short type question up to question number 12. That is question number 1 to question number 12 is revised in previous video lecture. In this video lecture, I will discuss you about the question number 13 onward. It means also include the question number 13 onward. I will discuss about the important 1 marks, 2 marks and 3 marks question that fall in the lesson TSU. Actually, in previous video lecture, you have the different questions may have the similar kinds of concept or may have the different kinds of concepts, but the questions may changed as per change as their number. According to TSU and their different kinds of parameters, we can able to solve the different question from the plant tissues and different question from the animal tissues. So the tissues not only either the plants or animals, it include both the plants and animals. This is the important video for those students who are still missed the video, important video of tissue chapter. And actually with the help of tissue chapter, with the help of this revision, you are able to know what are the importance of the lesson. It means the number of questions may have the changed or may are different, but the concept of tissues and their important explanation will be discussed in this video lecture. So if you miss the important video lectures of tissue, then be with the video, and you have the, I hope you have the pen paper in order to write the expected solution with the explanation. So without delay timing, let back over the question number 13 and revise thoroughly without any lefting the concept, without any missing the concepts. It is my focus to cover all the important question from the different video lectures. So this is the video lecture number 2 for the tissue for the long and short question. All kinds of MCQs and their revision is over. Now back to the question number 13. Question number 13. Question number 12 is over. How are simple tissues differ from the complex tissues? It was over in previous video lecture. In this video lecture, I will describe you the question number 13. Let us talk about the question number 13. Difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. Let us talk about the different. You should write the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. Actually, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma share the similar properties with their structure. Listen, share the similar property with their structure. Suppose that this is the parenchyma, this is collenchyma and this is sclerenchyma. Now क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा है कि सेल वॉल उनमें किस तरह का है. तो पैरेनकाइमा में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का होता है. नोट कर लीजिए, जो चीफ कंपोनेंट्स होता है उसमें सिर्फ सेलुलोज होता है. क्लियर है ना. जो एक्चुअल में सेलुलोज तो सभी तरह के प्लांट्स में, जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके सेल वॉल का बेसिक कंपोजिशन है, बट पैरेनकाइमा में सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज होता है. ठीक है. सेकेंड चीज है कोलेनकाइमा को. कोलेनकाइमा में सेलुलोज के अलावा और क्या क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ. सेलुलोज के अलावा कोलेनकाइमा में एक इंपॉर्टेंट केमिकल्स होता है जिसका नाम है पेक्टीन. ठीक है, पेक्टीन प्लस सेलुलोज. तो ये कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है. इसके अलावा स्क्लेरेनकाइमा में एक इंपॉर्टेंट केमिकल्स होता है जिसका नाम है लिग्निन. नोट कर लीजिए, लिग्निन. सेलुलोज प्लस लिग्निन ये स्क्लेरेनकाइमा में, सेलुलोज प्लस पेक्टीन ये कोलेनकाइमा में, एंड ओनली सेलुलोज in the parenchyma. So on the basis of cell wall and the basis of composition of cell wall, the concepts is I think clear. If you have any problem, what is pectins, what is lignins, what is cellulose,
then you must have asked in the live classes or in the comment box. Actually pectins and lignins, as like the cellulose, they are polymer of carbohydrates. So don't be confused what is polymers. एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, ऐसे लॉन्ग चेन जब बनेगा तो कोई ना कोई पॉलीमर बनाएगा. तो बस इतना जान लीजिए कि सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ एक पॉलीमर है, और पैक्टीन्स और लिग्रीन्स भी क्या है, पॉलीमर्स है. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. एक्चुअल में स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस में, जैसे लीफ है, लीफ के एपिडर्मल पार्ट में जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमको एक बीन सीड शेप स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा. ठीक है, बीन सीड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज एक्चुअली नोन एज द गॉड सेल्स, एंड गॉड सेल्स लेटर सराउंडेड बाय द मैनी पैलीसेड सेल्स. सो गॉड सेल्स having the pores, this pores is known as stoma. Actually this pores is known as stoma, and this is known as the guard cells, and this is the epidermal cell. This is the epidermal cell, and this overall structure is known as the stomata. ठीक है, तो स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन होता है उसको जानना, उसको समझना है. द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी. ठीक है, प्लांट्स के एरियल पार्ट से गैस का एक्सचेंज करते हैं. अगर स्टोमा, ये स्टोमेटा ओपन है तो स्टोमा ये खुल जाएगा, और यहाँ से इस पार्ट से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है लाइक जो वाटर वेपर वगैरह है, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो सब निकल के बाहर आ जाती है. ठीक है, सो स्टोमेटा एक्चुअली परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट्स. गैसेस मीन्स द वाटर वेपर, द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्चुअली एलिमिनेट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एंड दिस हेल्प टू ब्रिंग द प्रोसेस ऑफ transpiration, process of photosynthesis and process of respiration. Listen, how do process of transpiration and process of photosynthesis happen? Actually for the photosynthesis, listen, for the photosynthesis there is need of carbon dioxide in and oxygen out. If stomata remain closed during the time of photosynthesis, then how do carbon dioxide will enter into the plants? That is the basic problems. So these problems are resolved by the special structure that is known as stomata. If the oxygen remain in the plants, then how will you get the oxygen? How animals like you, me get the oxygens? So stomata required to open. If stomata remain open, then the oxygen will actually eliminate from the plants and it will gain by the other animals. So this is the important criteria by which you can say that stomata is essential. So the main function of stomata is to exchange of gas. Main function of stomata is to exchange of gas. Keep in mind, gas का ही exchange करता है. कौन? स्टोमेटा. From aerial parts. Don't forget to mention from aerial parts of the plant's body. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में. डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स? डायग्रामेटिकली यू कैन शो. द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स इज द स्केलेटल मसल फाइबर्स. सेकेंड टाइप ऑफ मसल फाइबर्स इज स्मूथ मसल फाइबर्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल फाइबर्स इज द कार्डियाक मसल फाइबर्स. ठीक है, अब एक एक करके तो नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी नहीं है, बट यहाँ पे हल्का हल्का मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ड्रॉ करना है क्या, स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्केलेटल, तो कुछ चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा. कौन सी चीज़ का फोकस करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा उसके डायग्राम के बारे में. ठीक है, डायग्राम उसका काफ़ी ईजी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये देखना है कि ये फ्यूजन कैसे कराते हैं. ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन करा करके इस तरह से हम बना देते हैं, बड़े आसानी से ये बन जाएगा. वीडियो भी उसका अपलोडेड है, डायग्राम कैसे बनाना है. इसका स्केलेटल मसल फाइबर्स का डायग्राम काफ़ी इजी होता है, बस उसको थोड़ा सा देखना रहता है कि कैसे ये बनते हैं. ठीक है, ये पूरी तरह से फ्यूज नहीं होते हैं, बस हल्के से फ्यूज हो जाते हैं, और बीच बीच में से डिवीजन होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है,
ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ढेर सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं। तो ये स्केलेटल मसल फाइबर्स है, ठीक है। और ये बोन स्केलेटल सिस्टम को और बॉडी के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके द स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स को आप बना सकते हैं, मैंने कहा था बहुत इजीली, सिंगल सेल है, ठीक है। ये दूसरा वाला पार्ट है, ऐसे या बहुत सारे ऐसे फ्यूजन को करते हुए आप स्मूथ मसल फाइबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर्स है जो बहुत आसान है बनाना, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर्स को बनाना जो है बहुत आसान है, इसको आप बना सकते हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल फाइबर्स है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द कार्डियाक मसल फाइबर्स। कार्डियाक मसल फाइबर्स, कार्डियाक मसल फाइबर्स एक्चुअली कैसे बनता है, इसमें फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बॉडी जो है कहीं कहीं फ्यूज कर जाती है, ठीक है, पूरी तरह से फ्यूज कर जाती है, तो ये आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बाकी के मसल फाइबर्स में आपको नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको फ्यूजन देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, कार्डियाक मसल फाइबर्स, ठीक है। इसमें पार्टीशन होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये कार्डियाक मसल फाइबर्स स्ट्रक्चर बन गया, और आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो बुक से भी देख सकते हैं, और प्लस इसका एक स्पेशल वीडियो बना होगा, इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है डिफरेंट बिटवीन स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कार्डियाक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी ऊपर मैंने 3 मसल फाइबर्स के बारे में बताया था, एक जो है स्केलेटल मसल फाइबर्स, और एक स्मूथ मसल फाइबर्स, और एक जो है कार्डियाक मसल फाइबर्स। जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं इसी को बोलते हैं स्ट्रिएटेड, ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर्स। और एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बताया था, बट इसके फंक्शन आप लिख लीजिए, मूवमेंट्स, दैट इज कौन से टाइप का मूवमेंट्स, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, जो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करे, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट्स। आई होप आपको स्केलेटल मसल फाइबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ होल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। थॉरली मैं एक एक चीज़ों को टच कर दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ये मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपका फिंगर काम कर रहा है, इसका मतलब आपका जो कार्डियाक मसल फाइबर्स अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चलो आते हैं, कार्डियाक नहीं, स्केलेटल मसल फाइबर्स अच्छे से काम कर रहा है। अनस्ट्रिएटेड का ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, इसी को बोलते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स। और ये बॉडी में वॉलेंटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, वॉलेंटरी फंक्शन, इनवॉलेंटरी फंक्शन के लिए, ठीक है, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनवॉलेंटरी फंक्शन क्या होता है, जो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग काम ना करे, ठीक है, आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग वो काम ना करे, उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ईसोफेगस, ठीक है, जब कुछ खाते हैं तो खाने के बाद वापस नहीं आ सकता, पेट में चला गया, यानी स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब इनवॉलेंटरी फंक्शन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल है उसको बोलते हैं अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। चलो आते हैं, कार्डियाक का ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, और ये जो है हार्ट को मेंटेन करता है, हार्ट के वॉल को हमेशा जो है फंक्शन में रखता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ कार्डियाक मसल फाइबर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंड भी करता है, ठीक है। कौन करता है, ये कार्डियाक मसल फाइबर्स। दिस रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है जानना, हार्ट को कौन रेगुलेट करता है, कार्डियाक मसल फाइबर। जो वर्ड कार्डियम है, कार्डियम इट मीन्स द हार्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि स्ट्रिएटेड मसल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, अनस्ट्रिएटेड का और
कार्डियाक का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऊपर मैंने तीनों को बताया था नाम, अभी बार देख लीजिए। स्ट्रिएटेड को स्केलेटल भी बोलते हैं, अनस्ट्रिएटेड को स्मूथ मसल फाइबर्स, और कार्डियाक को ऐसे एज यूजुअल कार्डियाक ही बोलते हैं। तीनों का फंक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था अच्छे से, आज भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, बट यहाँ के हल्का सा मैं आपको याद दिला दूँ कि यही हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। और न्यूरॉन जो है ये इंपॉर्टेंट जो है सेल ऑर्गेनल्स, ये हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट सेल्स है, जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं साइटॉन, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है एज यूजुअल सेल की तरह से, बट ये सेल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। एक्सॉन जो है, ये न्यूरॉन जो है सेल डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये डिवाइड नहीं कर सकता, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन की वजह से डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फॉलोइंग। इसमें से सबका नाम लिखना है, ठीक है। कौन कौन सा नाम है भाई, उसको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दूँ। लिसन, पहला है टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। कह रहा है टिश्यू जो इनर लाइनिंग माउथ बनाता है वो क्या है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है। इससे पहले सिंपल टिश्यूज़ में आप इसको मोस्ट क्यूबाइडल और कॉलमनर पढ़े थे, सिंगल लाइन का, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है मल्टी लाइंड होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो अंदर का माउथ का है ना, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। चलो आते हैं नेक्स्ट, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। इसमें इससे पहले मैं कनेक्टिव टिश्यूज में क्या बताया था, एक टेंडन होता है और एक लिगामेंट होता है, ठीक है। टेंडन क्या करता है, ये बोन टू मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेंडन, और बोन टू बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिगामेंट। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि टेंडन और लिगामेंट में बेसिक डिफरेंट और सिमिलरिटी क्या है। दोनों कनेक्टिव टिश्यूज है, बट टेंडन हेल्प टू लिंक द बोन टू मसल एंड लिगामेंट हेल्प टू लिंक द बोन टू बोन, ठीक है। चलो आते हैं, तो ये दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन, ठीक है। मसल्स टू बोन मीन्स टेंडन। मैंने ट्रिक भी दिया था, आपको याद होगा, बदमाश ट्रबाकी, BMT, बोन टू मसल मीन्स टेंडन, ठीक है। थर्ड, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोएम। चलो आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ का, टिश्यू दैट स्टोर फैट इन बॉडी। टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है उसका क्या नाम है, इसको आप कई बार इसको बताया भी गया था, ठीक है। टिश्यू दैट स्टोर फूड इन आवर बॉडी, लिसन, दैट एक्चुअली द एडिपोज टिश्यू। नोट कर लीजिए कॉपी में, एडिपोज टिश्यू स्टोर द फूड। द प्रॉपर टिश्यूज आर बेसिकली लूज प्रॉपर एंड डेंस प्रॉपर। द लूज प्रॉपर टिश्यूज आर एरियोलर एंड एडिपोज, दिस इज द लूज प्रॉपर टिश्यूज। एरियोलर का फंक्शन मैंने ऊपर बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, बट एडिपोज का फंक्शन क्या है, इट स्टोर द फैट, इट स्टोर द फैट एंड आल्सो काज द ओबेसिटी इन बॉडी। लिसन, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, कनेक्टिव टिश्यूज विथ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे टिश्यूज जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, कनेक्टिव भी और फ्लूइड मैट्रिक्स भी, उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड हैज़ द कनेक्टिव टिश्यूज हैविंग द फ्लूइड मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। चलो ये दिमाग लगाओ भाई, कौन सा टिश्यूज हमारे ब्रेन में है, नर्वस टिश्यूज, ठीक है, नर्वस टिश्यूज। आई थिंक आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम न क्रिएट हो। टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, कॉम्प्लेक्स। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, द टेंडन। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, द फ्लोएम। टिश्यू द स्टोर फैट इन बॉडी, एडिपोज। कनेक्टिव टिश्यूज विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, द ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन्स, द नर्वस टिश्यूज। आई होप ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आप कॉपी में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो लास्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको मैं एक बार डिफाइन कर दूं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि एक आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ टिश्यू, किसमें, इसमें से। तो कौन कौन से टिश्यूज हैं भाई, उसमें से देख लो। पहला जो दिया है वो क्या दिया, स्किन,
स्किन कौन सा टिश्यूज है भाई? स्किन जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का एग्जाम्पल है। स्किन कौन सा टिश्यूज है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आते हैं बार्क। बार्क कौन सा टिश्यूज का एग्जाम्पल है? बार्क जो है वो क्वार्क होते हैं। रॉबर्ट हुक ने जिसमें से सेल को डिस्कवर किया था, बार्क ऑफ ट्री, ये क्वार्क टिश्यूज है। बोन, ये कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है। बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े होंगे। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, कौन से टिश्यूज है उसमें भाई? ठीक है, कह रहा है कि कौन से लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन सा टिश्यूज है? ये क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यूज है। एक्चुअली कौन से टाइप का है? क्यूबॉइडल। अब लास्ट का जो है वैस्कुलर बंडल, ये कौन सा है भाई? ये कंडक्टिंग टिश्यूज है। कंडक्टिंग टिश्यूज जिसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो आते हैं। स्किन कौन सा टिश्यूज है? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। ठीक है, बार्क कौन सा टिश्यूज है? बार्क ऑफ द ट्री, ये क्वार्क है। ठीक है, बोन कौन सा है? ये स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यूज है। लाइनिंग ऑफ किडनी, ये एपिथेलियल कनेक्टिंग टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज है। और कौन सा टिश्यूज है? क्यूबॉइडल। वैस्कुलर बंडल ये क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज है जो कंडक्टिंग टिश्यूज का काम करता है। ठीक है, फ्लोएम वगैरह। चलो आते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ कभी कभी स्क्वामोस एपिथेलियल में भी आ जाता है। ठीक है, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज में भी आ जाता है कभी कभी। चलो आते हैं, 19 हो गया, 20 पे आते हैं। नेम द रीजन्स इन विच पैरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। भाई कहाँ पे पैरेनकाइमा टिश्यूज होता है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि रीजन्स ऑफ पैरेनकाइमा में भी रूट्स और स्टेम, ये रूट्स स्टेम किसी में भी हो सकता है। बाय मीन्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। फूड स्टोर करने का जो भी टिश्यूज काम करेगा उसकी कलेक्शन को बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, और कहाँ होता है? अगर इसमें हवा भरी हो, किसमें? पैरेनकाइमा में अगर एयर भरा हो, ऐसे एयर स्पेस इस तरह से, तो उसको बोलते हैं एयरेनकाइमा। एयरेनकाइमा, अगर हवा भरी है तो उसको बोलते हैं एयरेनकाइमा। अगर वो ग्रीन कलर का है, अगर वो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है और ग्रीन कलर का है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, हवा भरी है तो एयरेनकाइमा, ग्रीन है तो क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा कोई स्पेशल पार्टिकुलर नेम नहीं है। अगर कोलेनकाइमा भी ग्रीन कलर का तो उसको भी क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। अगर पैरेनकाइमा भी ग्रीन कलर का है तो उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन द एयर स्पेस आर फिल्ड, व्हेन द एयर्स आर फिल्ड in between the tissues of parenchyma, then they called earenchyma, and when they are green in color there will be the क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में भी द रूट, स्टेम, लीव्स and in form of earenchyma and colenchyma. So all about the revision from question number 13 to 20 is over in this video lecture. Now from the next video onward I will describe you the 21st onward including the 21, the revision of 21st onward including 21. So be with the video lecture. In next video lecture I will describe you the question number 21 and onward. I hope आपके पास कॉपी पेन होगा तो इसको आप आसानी से लिख रहे होंगे क्वेश्चन के आंसर, और आप एक अच्छे से कलेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका कलेक्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर का, और साथ साथ जो है रिवीजन भी हो जा रहा है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड। थैंक यू।